First type is absolute error. Now, as we have done previously, that to get value of error, we need difference between the true value and the measured value, right? But we must know that what is our true value of our experiment, right? So, firstly, let's check absolute error. Absolute error is basically nothing but it will, just like we did previously, that errors को minimize करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है बच्चा, सबसे पहले उसका अरिथमेटिक मीन निकालना है ताकि जो भी हमें एक्सपेरिमेंट वैल्यू मिल सके वो हम कह सके कि ये हमारी यहाँ ट्रू वैल्यू के काफी नजदीक है या ये एक्यूरेट वैल्यू है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बच्चा, एक एक्सपेरिमेंट जो भी हमारा है वी विल रिपीट सेवरल टाइम्स, राइट? वी आर रिपीटिंग अ एक्सपेरिमेंट एंड वी गॉट आवर मेजर्ड वैल्यू एज A1, right? Next time we repeat the same experiment and then we got A2, right, as our final result. Then we again repeated A3, right? Just like this we got AN when we repeated for nth time, right? We got AN. Now we need to find out what is true value. We got different values for the same experiment performed, but we want to know that what is true value of this experiment, or actually quite close to true value, right? So what we will do, we will take arithmetic mean of all these values, all these measured values, right? And let AM से हमने उसे represent किया. This is true value. Right, so we got AM which is equals to arithmetic mean, that is A1 plus A2 A3 plus AN divide by जितने number of time हमने अपने experiment को perform किया, like nth n, right, divide by that number. So we got arithmetic mean of absolute error, right? Absolute error का हमें true value बताएगा ये arithmetic mean से. Now we can also write it as AM is equals to 1 upon n and summation of I तक. आप क्या करेंगे बच्चा, summation करेंगे, right? I is equals to 1 to I is equals to n तक summation होगा A का, AI का, right? We can also write it like this. Now this is our true value. We got our true value by taking arithmetic mean of all the times we have done experiments, right? We got our true value, but we need absolute error. How we will got it? We will get it by, as we know this thing, error is basically difference between true value minus में, this is true value, right? ट्रू वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है, राइट? उसको सब्ट्रैक्ट कर दो. अब हमें पता है जब भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक बार हमें A1 मिला, सेकेंड टाइम वी गॉट A2, थर्ड टाइम वी गॉट A3 एंड नेक्स्ट टाइम वी गॉट AN व्हेन वी परफॉर्म्ड इट फॉर nth टाइम, राइट? सो वी विल गेट डिफरेंट एरर्स इन डिफरेंट मेजरमेंट, राइट? सो इन फर्स्ट मेजरमेंट हाउ मच एरर इज देयर, हाउ वी विल गेट? फर्स्ट हमें एरर चेक करना है, डेल्टा A1, ये क्या है बच्चा, हमारा एरर है, राइट? इन फर्स्ट टाइम व्हेन वी परफॉर्म्ड आवर एक्सपेरिमेंट फॉर फर्स्ट टाइम, ये हमें मेजरमेंट रिजल्ट मिला था, दैट इज A1. तो उसमें कितना एरर था हम कैसे देखेंगे? जो उसका ट्रू वैल्यू है, हम बोल रहे हैं कि ये उसका ट्रू वैल्यू है, जो हमने मीन लिया जिससे हमें जो भी वैल्यू मिलेगा वो हमारा क्वाइट क्लोज टू ट्रू वैल्यू है, वी कैन टेक इट एज अ ट्रू वैल्यू, राइट? सो सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी AM मिला है AM माइनस कर दो A1 से, फर्स्ट टाइम जो हमने किया. जस्ट लाइक दिस सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया तो उसमें कितना एरर था, दैट इज डेल्टा A2 इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू, दैट इज AM माइनस कर दो जो आपका उस टाइम पे जो आपको एक्सपेरिमेंट से वैल्यू मिला था, दैट इज A2, राइट? जस्ट लाइक दिस यू विल गेट डेल्टा A3 इज इक्वल्स टू AM माइनस A3 एंड जस्ट लाइक दिस you will get it for nth time, delta AN is equals to AM, that is true value, माइनस में AN जो हमें एक्सपेरिमेंट करने से nth टाइम पे जो वैल्यू मिला था, मेजर्ड वैल्यू, राइट? जस्ट लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट different errors present in different times, right? In measured value you can find arithmetic mean of it, then individually you can find errors in all the measured values. So here we can say arithmetic error may be positive, may be negative, because it is just simply our difference, right? So
अरिथमेटिक में एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो, राइट। कुछ भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है जो हमारी ये अरिथमेटिक एरर है। बट इफ यू विल टेक मीन ऑफ इट, राइट, अगर आप डेल्टा A1 लिखा हुआ है, डेल्टा A1 का अगर आप मीन ले लेते हो तो वो आपका क्या हो जाता है बच्चे, आपकी जो आपका साइंस है वो आपके नहीं मिलते हैं, राइट, तो पॉजिटिव ही होगा। देन वो क्या हो जाएगा, विल ऑलवेज ए पॉजिटिव, जो उसका मीन लेंगे अगर आप तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। So now next type of our error what we use in physics is mean absolute error. Now previously we have done absolute error, right? Absolute error basically बच्चा हमने उसमें क्या किया था, हमने उसमें ट्रू वैल्यू फाइंड आउट किया, राइट। ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या किया, इंडिविजुअल हर क्वांटिटी में कितना एरर आया था हमारा उसको फाइंड आउट किया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट मीन ऑफ दीज एरर्स। यस, जो हमारी एरर्स आई हैं इंडिविजुअल, उनका जब हम मीन लेंगे, राइट, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, इफ यू विल टेक मीन ऑफ इंडिविजुअल टर्म, इंडिविजुअल एरर का अगर आप मीन लेते हैं तो हमेशा क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, राइट। ऑब्वियसली अगर आप मीन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, उसका साइन जो है वो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। सो डेल्टा ए का मीन ले रहे हैं हम, जितनी भी आपकी एरर्स आई हैं, राइट, मीन किसका ले रहे हैं हम, एब्सोल्यूट मीन ले रहे हैं किसका, एरर्स का, राइट। जितनी भी आपके इंडिविजुअल एरर्स आई हैं, नेक्स्ट स्टेप में मीन एब्सोल्यूट एरर टाइप अगर निकालने को बोलता है वो किसी का, तो कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल एरर निकालो, उसके बाद उसका क्या कर दो बच्चे, सबसे पहले जैसे डेल्टा A1 आया प्लस कर दो डेल्टा A2, बट उनका मीन लेके, यानी कि अगर नेगेटिव है कोई भी पावर, कोई भी आपकी एरर, तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, पावर पॉजिटिव, राइट। डेल्टा A3 जस्ट लाइक दिस, डेल्टा AN, राइट। सो डिवाइड, n टाइम हमने एरर्स निकाली थी तो n से डिवाइड कर दो, तभी तो क्या आएगा, मीन आएगा किसका, एब्सोल्यूट एरर्स का, राइट। एब्सोल्यूट एरर मतलब जो आपकी सब पावर्स क्या होंगी, आपकी पॉजिटिव होंगी, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा, राइट। सो जस्ट लाइक दिस यू विल गेट सम वैल्यू, दैट इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट, मीन एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा ए मीन किसके इक्वल आ गया आपका, मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन निकालना है, एब्सोल्यूट 1/n आपका समेशन I is equals to 1, I is equals to n तक delta A I, right, with mean. So this will be your another term in which you can write this thing, right. So जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो आपके पास मेजरमेंट आया है, उसको आप कैसे लिख सकते हो बच्चे, उसको हम लिख सकते हैं कि एक तो उसमें आपका ये एरर होगा, है ना, प्लस जो आपकी ट्रू वैल्यू है वो, जैसे कि हम अगर एक्सपेरिमेंट में देखें तो आपका क्या है, हमने जैसे कि g इज इक्वल्स टू 9.8 वैल्यू लिया हुआ है ना। सो अगर आपका ये g इज इक्वल्स टू 10 आता है एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें क्या है बच्चा, 9.8 है प्लस उसमें क्या है, 0.2 का एरर है, यही है, तभी आपका क्या बना, 10 बना g, है ना। सो आपका क्या रहेगा बच्चा, जो भी मेजरमेंट रिजल्ट आता है इससे, जो मेजरमेंट रिजल्ट है दैट इज इक्वल्स टू AM, दैट इज ट्रू वैल्यू प्लस माइनस, ये 9.6 भी हो सकती है वैल्यू और 10 भी हो सकती है ना। लेट नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, दोबारा परफॉर्म किया तो 9.6 आ गया, तो उसमें क्या है 9.8 माइनस 0.2, यानी कि एरर क्या है, पहले प्लस 0.2 का एरर था, बाद में माइनस 0.2 का एरर आ गया। सो प्लस भी हो सकती है एरर, माइनस भी हो सकती है, डेल्टा ए मीन, राइट। सो दिस इज योर मेजर्ड रिजल्ट, जो है उसमें प्लस माइनस का आपका एरर है। और मीन एब्सोल्यूट एरर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंडिविजुअल एरर्स का मीन ले लीजिए, देन यू विल गेट, उनके मैग्नीट्यूड का मीन लेंगे तो आपके पास क्या आ गया बच्चा, फाइनली आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया है, राइट। So like this you can find the second type of error, that is mean absolute error. In physics these terms are used very much for numericals. Now next type of error is relative error
और फ्रैक्शनल एरर, राइट? सो हाउ टू फाइंड रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर? बच्चा, जो हमने प्रीवियसली एब्सोल्यूट एरर किया था, बेसिकली हम उसे बहुत कम यूज करते हैं. बेसिकली फिजिक्स में आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे फॉर नीट एंड JEE, जिसमें हम क्या है इन एरर्स की टॉपिक को कवर करते हैं, राइट? सो आपका एब्सोल्यूट एरर की जगह हम क्या ज्यादातर यूज करते हैं? रिलेटिव एरर, या फिर जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं. As the name tells, it is basically a fraction, right? या फिर आपका क्या है? आपका रिलेटिव एरर बेसिकली क्या है? एक रेशो है. किस चीज का रेशो है? इट इज रेशो, राइट? डेल्टा ए से हम डेल्टा ए यानी कि जो आपका मेजर वैल्यू है उसका आपका हम क्या ले रहे हैं? रिलेटिव निकाल रहे हैं. रिलेटिव एरर इज रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, जो हमने सेकंड स्टेप में अभी फाइंड आउट किया है. सो दीज ऑल 4 स्टेप्स आर देयर, दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट? सो रिलेटिव एरर इज बेसिकली रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, mean absolute error to the mean value, right? mean value या फिर जिसे आप ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं, राइट? जिसे हमने AM से रिप्रेजेंट किया था शुरू में, फर्स्ट स्टेप में, ट्रू वैल्यू, राइट? सो मीन एब्सोल्यूट एरर हमने अभी निकाला था, राइट? मीन एब्सोल्यूट एरर हमने निकाला था अभी बच्चा. उसी का हम क्या करेंगे? उसी की वैल्यू को, जैसे कि हमारे पास क्या आया था बच्चा? डेल्टा ए मीन, राइट? उसी को डिवाइड कर दो आप ट्रू वैल्यू, दैट इज AM, राइट? एक्सपेरिमेंट में दिया होगा आपको क्वेश्चन में, तो उसमें पुट कीजिए एंड यू विल गेट आवर वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर, या फिर जिसे हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर इज, दैट इज फोर्थ टाइप ऑफ एरर,